11th का 365 डेज प्लस 12 का 365 डेज जहाँ लोग नॉन स्टॉप पढ़ते हैं, सिर्फ जेडब्ल्यू करते हैं, कोचिंग करते हैं, आपको पता है कि अभी कैसा मार्केट हो गया है, rather than use this for building your skill set. तो वो मेरा चीज, there are lot of struggles. You know, entrepreneur when he does not prove himself, तब तक कि उसे कोई point नहीं है. If you can't convince your mom dad, you can't convince investor too. So Hello everyone, welcome to SPP CET. I'm really honored to be hosting this podcast alongside India's youngest corporate trainer in the field of AI. He is the founder and director of Codons Private Limited. Please welcome Mr. Shivam Joshi. Welcome sir. hi, hello everyone. So how are you doing today? Yeah, I'm doing great now. It was an event day where we were speaking in panels and about data science, AI. So that's something, a techie thing we are doing. How was the session? Yeah, it was really great. Means the audience is really interactive and everyone is focused towards the technological and entrepreneurship is really focused part nowadays rather than academics. So it was going great. Nice. Sir, Codons क्या ना बताइए? Codons and college से corporate तक का रास्ता, right? Definitely. या उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. See guys, they start कभी भी ना कोई business एक vision पे start होता है, एक mission पे start होता है and it can be related to a personal life experiences or any experience like hostels में कोई problem face होना कोई होना. So my problem statement was like कॉलेज से कॉर्पोरेट तक का कोई पाथ ही नहीं था. एवरीवन इज फोकसिंग ऑन एकेडमिक्स. ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें 6 पॉइंटर से लेके 10 पॉइंटर के बीच में, बहुत सारे लोग, तो उसमें कोई यूनिक नहीं है. दैट्स व्हाई दिस जीडी एप्टीट्यूड्स दिस ऑल आर फिल्टर स्क्रीनर्स टू रिमूव दिस पर्सन. सो कोडॉन्स इज इनटू डीप एक्सपर्टीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड वेयर वी आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन द प्लेसमेंट बट ऑफ द स्किल सेट व्हिच इज इंडस्ट्री नीडिंग इनटू इमर्जिंग टेक्स लाइक न्यूरल नेटवर्क्स, इमेज प्रोसेसिंग, एआई, डीप लर्निंग. ओके, सो एट व्हाट पॉइंट आपने डिसाइड कब किया कि आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग फील्ड में, नहीं तो आपको बच्चों को लाइक ट्रेन करना है इनटू द कॉर्पोरेट फील्ड? ओके, सी इसका एक सिंपल गिवन होता है. इट्स नॉट लाइक कभी हम कोई चीज़ एकदम डिटेल सोच के नहीं करते. यू नो, ट्रेनिंग वाज नेवर माय डोमेन. आई वाज इनटू डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी. बट व्हेन यू स्टार्ट डेवलपिंग समथिंग ना, यू हैव ओनली डेवलप दैट, तो आपको आइडिया है कि आपको सिखाना चाहिए. एंड एज आई टॉक इन माई सेशन, जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो ना, जब तक आप प्रॉफिट्स नहीं कमा रहे हो, तब तक आप अपने बिजनेस को सस्टेन नहीं कर सकते. Someone doing photography can teach you how to do a photography. Someone training a AI system development model can also train you how to build this model. So let's keep this business model as a diversity where you can also earn profits. It's also for gaining new things and learning to the industries. And definitely training young tech minds was always my dream. To training for corporates like L&T, Wipro, any of the corporates. So, am I correct that at the age of 17 you started Codons? 18. Yeah, okay, 18. So the part was I just completed my 12th standard using normal education state board. What happens now? People just say this, that how did you start company at early, and I already told them there are two different things, guys. प्रोजेक्ट्स थे इसीलिए कंपनी बनाई एंड कंपनी है फिर प्रोजेक्ट्स आएंगे. सेकंड वन इज सो ऑड, यू हैव टू फैच, यू हैव टू बिल्ड इट इनटू मार्केट, बट देयर आर मेनी प्रोजेक्ट स्ट्रीम्स में, इफ देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन आल्सो कनेक्ट इट इनटू इट. उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं रहता है. सो देयर आर प्रोजेक्ट्स रहते हैं तो यू कैन गिव स्पेसिफाई देम नाउ. Okay, nice. So you represented India in Dubai Expo, right? Correct. How was the experience for that? Yeah, it was really good. Actually that was a really great thing for me, but of course, you know, even talking here, never expected that 3-4 years prior I will be speaker and there will be some extent, because at initial stages there are a lot of struggles. You know, entrepreneur when he does not prove himself, तब तक के उसे कोई point नहीं है. Even not single bank gives him a credit card. जब तक no people are happy with 15,000 job per month, but entrepreneur earning imbalancedly or like अगर constant income नहीं है तो people doubt him. So initial stages में problem होता था, but अभी कैसा है ना, एक wave बन रही है, एक vibes आ रही है, कैसी चीज़ें. So यहाँ पे ना कहीं age को और skill set को बहुत what we can say बहुत weightage है. It's like when you go for this skill set and it's very perfect. So there was a proposal on me that you should pitch India Pavilion on artificial intelligence. तो एक अच्छा experience रहा, एक process थी 2 महीने की. Then I was into Indian Pavilion, experiencing new thing. वहाँ से काफ़ी life change हुई, वहाँ से काफ़ी flows थे. So about since you started at the age of 18, right? आपने बहुत early start किया. Anyone like starting early, उनको क्या advantage मिलता है? बहुत advantage है. सबसे बेस्ट एडवांटेज है आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है. हाँ. और फेल भी होते हो ना तो आपको कोई डाउट करने वाला नहीं है. बच्चा समझ के छोड़ देगा. दैट्स द बेस्ट पार्ट, यू नो. क्योंकि व्हेन
यू स्टार्ट एट एज ऑफ 25 में जब स्टार्ट करोगे ना, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और स्विच करना भी मुश्किल है. सो फिर कहीं ना कहीं आपको रेगुलर लाइफ में रूटीन रहना पड़ेगा. ऑफ कोर्स आई वाज हैविंग दैट क्विक जजमेंट कि मैं इंजीनियरिंग तो करूँगा बट आई कैन नॉट डू इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT. उतना एकेडमिक्स मेरा नहीं था. एंड डेफिनेटली इट्स क्विक एनालाइज कर लेते तो यू कैन गो समवेयर एल्स. तो आई हैव यूटिलाइज दैट 11th का 365 डेज प्लस 12th का 365 डेज, जहाँ लोग नॉन स्टॉप पढ़ते हैं, सिर्फ JEE करते हैं, कोचिंग करते हैं, या आपको पता है कि अभी कैसा मार्केट हो गया है, रादर देन यूज दिस फॉर बिल्डिंग योर स्किल सेट. तो वो मेरा काफी अच्छा एडवांटेज था. अगर आप स्किल सेट में उसे यूटिलाइज करते हो तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर. नाउ जस्ट एग्जांपल, माय एज इज जस्ट 23. कल 23 का हुआ मैं. बिलेटेड हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. सो कल अगर मैं 23 का हुआ एंड मेरे साथ मेरी बैचमेट्स आर जस्ट पासिंग इंजीनियरिंग नाउ. सो वो भी इंजीनियरिंग पास हुए, मैं भी इंजीनियरिंग पास हुआ विद माय 5 years ऑफ वर्क एक्स, और उनके पास अभी 0 year एक्सपीरियंस है. तो एज के पहले ये आपको एक अच्छा एडवांटेज मिलता है, दैट अदर देन एकेडमिक्स. सर लाइक अगर आपको जल्दी स्टार्ट किया तो आपको जैसा है कि स्पेसिफिक स्ट्रगल्स कुछ फेस करने पड़े? डेफिनेटली स्ट्रगल्स होते हैं, ट्रस्ट रिलेटेड होते हैं, व्हाट यू कैन से, कुछ जजमेंट्स होते हैं, मैच्योरिटी लेवल होता है. बट यू नो दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग. When you are working in a product or services, लोगों को आपकी क्वालिटी से मतलब है. हाँ, इनिशियल डेज स्ट्रगल बहुत थे, आपको प्रूफ करना पड़ता है. इवन आई विल आस्क यू दैट इफ यू वांट टू आस्क फॉर फंडिंग, अगर मुझे आपके कंपनी में पैसा डालना है और आपको पैसा चाहिए मेरे कंपनी से, तो यू हैव टू कन्विंस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, खुद को मॉड्यूल को प्रेजेंट कराना पड़ेगा, व्हाट यू वांट टू से. तो इनिशियल डेजेस होते हैं स्ट्रगल, बट दे स्ट्रगल्स आर नॉट रिलेटेड टू क्वालिटी और प्रोडक्ट. इट्स जस्ट लाइक एज कैसा है, कर पाएगा क्या, कि कैसे डिसिप्लिन है, बायसनेस है, नेटवर्क्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, ऐसी चीजें होती हैं. बट व्हेन यू गिव ओरिजिनेटेड फॉर्म ऑफ दैट स्किल सेट, इतना मैटर नहीं करेगा. बिल्कुल. तो वो अर्ली स्टेज में अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर उस टाइम पे इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या है जो एक स्टूडेंट को चाहिए? सिंपल. आपको पता है मेन प्रॉब्लम क्या है कि एवरीवन इज थिंकिंग दैट IT CS इज बूम, और लोगों ने बाकी फील्ड्स को छोड़ना, मतलब चूज करना छोड़ दिया. इवन इफ वी टॉक अबाउट कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीजें विच दे आर वेरी राइट इन ITs एंड एवरी डोमेन, बट बाकी जगह पे एडमिशन नहीं होता है, तो डेफिनेटली वाई कॉलेज विल ओपन दैट स्ट्रीम. मतलब ETC इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने देखा होगा कि इंटेक काफी कम हो गया है. देयर आर 30 स्टूडेंट्स 40 स्टूडेंट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि यही फ्यूचर है, बट इट्स नॉट करेक्ट. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, EVs आ रहे हैं सब जगह पे. तो इट डिपेंड ब्रांड टू ब्रांड. और कभी ना स्टार्टअप नॉट ओनली IT में होते हैं. देयर इज नो कंपल्शन पॉइंट कि हमेशा हम कंपनी IT में ही ओपन करें. देयर आर मेनी थिंग्स. नॉन टेक स्टार्टअप हो सकता है, कोई भी चीज़ हो. इट्स जस्ट लाइक सॉल्विंग द प्रॉब्लम. तो इनिशियल डेजेस में अगर किसी को भी स्टार्ट करना है, ही शुड ट्रिगर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट कि वो क्या करना चाहते हैं. एंड इफ यू आर इनटू कोडिंग जर्नी, यू हैव टू लर्न इट अदर देन एकेडमिक्स. ओके, आउटसाइड. बिल्कुल. ओके, लाइक व्हाई आउटसाइड ऑफ एकेडमिक्स स्पेसिफिकली? सिंपल. Academic knowledge is a theoretical knowledge. I am not saying to drop it out. मैं किसी भी एंटरप्रेन्योर को या किसी भी पर्सन को ये नहीं कहूँगा कि कॉलेज कभी ड्रॉप आउट करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद कोई बैकअप नहीं रहेगा. Exactly. और हमने देखा है जिनके बैक्स लगे हैं, जिन्होंने ड्रॉप आउट लिया और जिन्होंने जो बिजनेस नहीं बना पाए, वो लोगों का एक्सिस्टेंस नहीं है अभी. बट यू नो व्हाट इज देयर लास्ट एजुकेशन? 12th. हाँ. क्योंकि उसके बाद वी कैन नॉट रेट इट ना. दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज. क्योंकि एटलीस्ट अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो आपके पास देयर आर फ्यू बैकअप प्लान, और ये चीज़ को हम प्रमोट भी नहीं करते. वी हैव टू आल्सो सस्टेन इन सोसाइटी. सेम इंडिया के UX में, यूजर एक्सपीरियंस में, और बाहर के UX में बहुत डिफरेंस है. बाहर लोग कैफेज में काम करते हैं, मैकडीज में काम करते हैं, जस्ट टू अर्न साइड बाय साइड एंड डू देयर यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइक दैट. यहाँ पे हम जोमेटो की टी-शर्ट पहन के या BPO में कॉल करके वी कैन नॉट डायरेक्टली एंटर इनटू दिस नॉट. तो मैंने कहना रहेगा यू कैन डायरेक्टली फोकस टू एजुकेशन, पैरेलली मल्टीटास्क करना ही पड़ेगा. Multitasking. Multitasking is very important. So, I want to ask, coming to e-exporting, right? Innovate or evaporate, right? What was your intention when you came here? Like, आपको क्या message आपको like specifically convey करना था आपको? Simple, very simple. Innovate करोगे ना तो आपको कोई replace नहीं कर पाएगा. Simple thing. जो लोग एग्जिस्टिंग, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, जिन्होंने ना सिर्फ टेक्नोलॉजी कॉपी की है. ई-टेक एडटेक प्लेटफॉर्म्स थे, एजुकेशन बायजूस सबसे पहले था, उसके बाद अपग्रेड आया, देन अनअकैडमी आया, देन फिजिक्स वाला आया, लाइन बाय लाइन व्हाइट हेड जूनियर सब लाइन बाय गए. इफ वी टॉक अबाउट गेमिंग सेक्टर, गेमिंग में भी वैसे ही हुआ. पहले ड्रीम 11 आया, फिर MPL आया, देन माई सर्कल, जंगली रमी एंड ऑल विंजो वगैरह सब आते गए. बट ना ये वाइब कैसे ना, सिर्फ मार्केट से पैसा लिया, फंड रेज किया, वैल्यूएशन बढ़ाया, क्योंकि इनका ड्रीम हमेशा से ऐसा रहा है, कंपनी लेंगे, वैल्यूएशन बढ़ाएंगे और कंपनी बेच देंगे. शॉर्ट टर्म डेफिनेटली. बट कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, नॉट मी, एवरीवन हु वांट टू स्टार्ट अप. मैंने कहा ना, अगर एक कैफे अगर आप ओन करते हो और आपके प्रॉफिट्स डे 1 से 0 है, आपको नहीं मिल रहा है कोई प्रॉफिट, तो हार्डली आप उस कैफे को 4 से 5 महीना चला सकते हो.
उसके बाद आप कैश बर्न नहीं कर सकते, मतलब आपके पास पैसा ही नहीं है, यू हैव टू शट इट डाउन। मेरा भी सिंपल एथिक है, आई स्टार्टेड वर्किंग एट द 18। इसका मतलब ये नहीं कि अर्ली स्टार्ट करके कोई भी कंपनी डालना है या फिर प्रोजेक्ट्स लेना है, इट्स अबाउट आइडिया, कोई एथिक, कोई वर्क फॉर्म। तो इनोवेशन करोगे, पेटेंट करोगे, कोई टेक्नोलॉजी अगर तुम्हारे नाम पे रहते विच यू आर फोकस्ड टू इट, देन इट्स योर वे। ओके सर, अभी के मार्केट में आपको लाइक नेटवर्क वो एस्टैब्लिश करना कितना इम्पोर्टेंट है? सी नेटवर्क इज रियली इंपॉर्टेंट, बट मैं बताऊँ क्या, सारी चीज़ें ना आपके प्रोडक्ट डिसाइड करती है। यू नो, होर्डिंग लगा देने से या क्लासेस या कोई चीज़ को प्रमोट करने का तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक नहीं बढ़ेगी। लोग कब याद रखे पता है, व्हेन यू प्रोवाइड देम अ क्वालिटी। सिंपल सी बात, नॉट प्रोडक्ट सर्विसेज एनीथिंग, इट कैन बी अ वेबसाइट, इट कैन बी अ डेवलपमेंट। होता है ना अभी टेक्निक्स की या कोई भी साइट है, कौन बनाता है आपके वेबसाइट टेक्निक्स की? से आप ही स्टूडेंट्स में से कोई फाइनल ईयर के, कोई थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के। तो कभी रहा होगा ना कि 10 सालों में अगर ये इवेंट हुआ है तो यार वो साल की वेबसाइट सबसे बेस्ट थी या उसका बिकॉज ऑफ दैट डेवलपर। या योर कॉलेज इज फेमस इनटू गो कार्टिंग, F1 रेसेस एंड ऑल। क्यों रखते हैं लोग ये कॉलेज को याद उसी नाम से? क्योंकि उन्हें कोई वो चीज़ में हरा ही नहीं पा, उनकी टेक्नोलॉजी, उनके डायनामिक्स, उनकी डिसीजन मेकिंग, और सालों सालों से रेडी हो रहा है। 5 साल पहले, 3 साल पहले, 6 साल पहले जब भी आप ये कंपटीशन में जीत रहे हो, पहले ऐसा लगता था कि चलो फर्स्ट ईयर है जीत गए, सेकंड ईयर था, बट हाउ आर यू मेंटेनिंग दैट लेगेसी? क्योंकि सीनियर्स ने एक पाथ बना के छोड़ा है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। आपका यूएसपी, आप किस में इनोवेशन कर रहे हो, योर डिजाइन सिस्टम्स, एवरीथिंग आपका एक्सपीरियंस और फॉलोअप ही आपको बताएगा। So talking about legacy, what's the legacy that you want to leave on the scene? सिंपल है यार, मैं ऐसा कभी ना, मेरा अचीवमेंट जब लोग पूछते हैं कि व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट या ऐसी कोई चीज़ है, उसमें ऐसा रहता है ना कि आई एम प्राउड दैट आई एम नॉट इनटू रैट रेस। तो मैं सबसे यही चाहता हूँ कि बहुत चीज़ें करने को, इट्स नॉट एवरी टाइम दैट मैंने कहा ना, बहुत जल्दी मिडिल एज क्राइसिस आ रहा है, बहुत जल्दी कि यार क्या करना है लाइफ में, कुछ नहीं हुआ, कॉलेज है, फीस भर रहे हैं, देन उसके बाद वी हैव टू गेट अ जॉब, वी हैव टू डू दिस। इतना नहीं है। अगर आप थोड़ा सा काम डाउन होकर रिलैक्स होकर सोचो, मेरा बस ये कहना रहेगा, टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं सवेरे 5 बजे उठो, मतलब तो मैं भी 5 बजे नहीं उठ रहा हूँ, बट यू नो व्हाट्स इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं पता ही नहीं। लाइक जो कहिए, लोग JEE और नीट एक साथ देते हैं, दोनों फॉर्म भरते एक साथ, और जिसमें बेस्ट स्कोर आता है, अगर नीट आ गया तो दे गो चूज MBBS, और अगर JEE आ गया दे चूज JEE। तो यार इतना रॉ नहीं चलना है ये टाइम पे अगर करके ना। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल है, छोटा सा, अगर टाइम में वापस जाने का मौका मिले तो किस फेज को चेंज करोगे? कहाँ मतलब एकदम नॉट रीस्टार्ट, आई एम नॉट सेइंग फर्स्ट स्टैंडर्ड से, किस क्लास में कहाँ से करेक्ट करना चाहोगे चीजें? आई वुड से मे बी लाइक थोड़ा सा हमें क्लैरिटी होता है डिसीजन मेकिंग। हाँ, कि लाइक आप कहाँ पे कौन से स्टैंडर्ड में, लाइक 10th में आते हो वापस तो भी कवर कर सकते हो, या 11th? आई वुड से 10th, क्योंकि लाइक आफ्टर 10th क्योंकि वो एक साइंस या कॉमर्स का वो आता है। बिल्कुल डिसीजन ले पाते, चीजें देख समझते। और क्या डिसीजन होता वो, आइदर रिलेटेड ज्यादा पढ़ते, स्टडी करके करते, कि क्या टेक्नोलॉजिकल या क्या लगा पड़ते, जो टाइम अभी चला गया। अभी आई वुड से कि लाइक एंटरप्रेन्योरशिप जितना मेरे को अभी थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है, तो फिर लाइक उस टाइम पे द स्टिग्मा वाज ऑल अबाउट लाइक इंजीनियरिंग करो एंड ऑल दैट, राइट? सो उस टाइम पे लाइक मेरे को भी था काफी फैमिली टाइप वैसे, और फिर उसके वजह से मैं लाइक क्लियरली सोच नहीं पाता। एग्जैक्टली। सो इफ आई वुड चेंज, स्किल्स अपग्रेड कर लेते, स्पोर्ट्स खेल लेते, कुछ कर लेते। एग्जैक्टली, जो चीज को भी फ्रीडम। यू नेवर नो गाइस, कौन सी चीज हमें कहाँ लेके जाएगा ना, इसका कोई क्लैरिटी इज इम्पोर्टेंट। So आपने अपना वो सेशन लिया, लाइक रिव्यू सुनने के बाद, लाइक इट वाज रियली अमेजिंग एक्चुअली। पीपल फील लाइक इट वाज वर्थ कमिंग टू analysis, so like what's your advice that you would like to give to the viewers right now watching? Okay, so my advice is just simple, like I will conclude, it's like multitasking guys. Multitasking is really important. Manage your college and your startup, and at least give some hours, weightage it, give 20-30%, after that 50-50% everything. Second important thing is, if you can't convince your mom dad, you can't convince investor too. So convincing is really important. State them the projection by what work they want to do, और आपको किस फील्ड में काम करना है, आपको क्या पसंद है, either it is dance, singing, music, anything. Startup किसी भी चीज़ों में हो सकता है. And third most important thing is कि टाइम का यूटिलाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि ये मैं काफ़ी जोक्स में और चीज़ों को ये बिल्ड करता था. सिविल स्कोर बनाना, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखना, स्टार्टअप्स में इनिशियल स्टेजेस पे ITR फॉर्म करना, सारे इनकम टैक्स अरेंजमेंट्स एंड एवरीथिंग प्रॉपर अगर है ना, तो यू विल नॉट फेस एन इशू. वो चीज़ होती है. तो ये एडवाइजरी कैन मोस्ट प्रायोरिटाइजेस मल्टीटास्किंग, क्योंकि मुझे उससे रिजल्ट्स मिले हैं एज यंग. जितना आप मल्टीटास्क करते हो, सोचो
coming from a same, कुछ ज़्यादा difference नहीं होगा age में. You are like 21, 20, or maybe you're 20, right? 20, correct, 20 and 22. Yesterday I become 23. So there is a 2 years of difference. तो 2 साल में अगर I am here for giving a talk and you're here or team is here as an audience, तो कहीं ना कहीं उतना डिफरेंस रहा है. दैट इज मल्टीटास्किंग. कहीं ना कहीं ये अगर आप आज भी यूटिलाइज करते हो तो यू कैन गेट रिजल्ट्स इनटू दैट. सो मल्टीटास्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एज स्टूडेंट. मल्टीटास्किंग एंड क्लैरिटी बेसिकली. बिल्कुल. Thank you so much for coming to this podcast. Like, I'm really happy and really honored to actually be here. Shivam Joshi, everybody. Thank you. Thank you everyone for watching. Thank you.